welcome back. And we were continuously doing the British history, in which we have completed first or beginning age of the British history, that is Old English period. So in last class I have started the next second age of the British history, that is Middle English period, and that is also we have divided into two parts. So first part था the age of Chaucer. So I have also discussed the historical major event of the age of Chaucer in last class, and in this class I am going to start his work, the work of the Chaucer. So Geoffrey Chaucer है, इसकी जो work है that is divided into three page. So work of Chaucer is divided into three phase. So इसका जो वर्क है वो थ्री फेज में डिवाइडेड है. फर्स्ट फेज है फ्रेंच फेज, दैट इज टिल 1372. सेकंड है इटालियन फेज, that is 1395. Okay, and third phase है English phase, that is 1399. Okay, so I have already discussed that Chaucer is fond of traveling, visiting the place. Okay, so and he also worked under Edward III, and on his diplomatic missions Edward III sent him many countries like French, Italians and other countries. So his work is also divided on the basis of his place. So first है फ्रेंच पेज. सो फ्रेंच पेज है, इसमें इसके दो इम्पोर्टेंट वर्क हैं जो आते हैं. ड्यूरिंग आफ्टर विजिटिंग द फ्रेंच ही हैज रिटन दिस टू वर्क, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो इसका जो फर्स्ट वर्क है, जस्ट जो इसका फर्स्ट वर्क है दैट इज जो फ्रेंच इसके अंदर आता है, फ्रेंच पेज के अंदर आता है. ओके, सो दैट इज फर्स्ट वर्क है जो फ्रेंच पेज के अंदर आता है, दैट इज रोमन दे ला रोज. रोमन दे ला रोज ये फ्रेंच में है, ठीक है. सो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है रोमांस ऑफ द रोज, रोमांस ऑफ द रोज. So it was written in 1382. 1360. Okay. So ये एक ड्रीम एलिगरी है, ड्रीम एलिगरी. So what is dream allegory? In the ancient time, the poet used to see a dreams, and whatever they saw in their dreams, they used to write on their work. So जो भी कुछ अपने ड्रीम्स में वो देखते थे वो एज इट इज अपने राइम्स में उनको कन्वर्ट कर देते थे या अपने वर्क के अंदर लिख देते थे. तो ये भी एक सेम ड्रीम एलिगरी है जो जोफ्री चौसर है. ओके, now in this work, what is the story of this work? In this work Geoffrey Chaucer he falls asleep and he saw a dream. Okay, in his dreams he describes about a lover and who take the advice of the goddess of love Juno. Who is the goddess of love? Goddess of love is Juno. Okay, so here the lover takes the advice of the Juno that how he can achieve the favor of his lady. Okay, so how he can gain the favor or the love of his lady. So here Juno advises the
advises the lovers, and in this poems also his love is symbolizes the rose flowers. His love is symbolizes the rose flower and he is unable to gain this rose. तो इसमें वो इस रोज को प्राप्त करने में असफल रह जाता है। तो ये स्टोरी होती है, ज्यादा आपको डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो जोफ्री चौसर है उससे स्टोरी से भी वर्क आता है, लेकिन ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपको डेप्थ में जाके पढ़ना पड़े। सिर्फ आपको ये याद रखना है ये फ्रेंच का अडेप्टेशन है जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है रिमेन्स ऑफ द रोज, ठीक है। एंड इट इज ए ड्रीम एलिगरी है जिसमें सिर्फ मेन जो मेन स्टोरी है दैट इज ए लवर एंड हु प्रे टू द गॉडेस ऑफ love Juno, and he takes his advice that how he can gain the favor of his lady love, and उसका जो love है that is symbolize the rose flowers and he is unable to gain this flower. तो that is the story. So second जो work है इसका that is important. जो second इसका work है that is very very important, the book of the Duchess. सेकेंड जो इसका वर्क है दैट इज द बुक ऑफ द डचेस, द बुक ऑफ द डचेस, एंड इट इज ऑल्सो ड्रीम एलिगरी, और ये 1382 to 72 तक इसका जो रिटर्न है वो पब्लिकेशन है, वो ईयर है ये इसका, ठीक है। सो ये भी एक ड्रीम एलिगरी है, ड्रीम एलिगरी, और ये ऑक्टोसिलेबिक कप्लेट में लिखा गया था, ऑक्टोसिलेबिक कप्लेट, ओके। सो ये माना जाता है कि दिस बुक इज रिटन ऑन द डेथ ऑफ डचेस ऑफ लैंकास्टर, सो इट इज बेस्ड, इट इज रिटन ऑन द डेथ ऑफ Duchess of Lancaster. So Duchess of Lancaster, that is the wife of John Gaunt, John of Gaunt. So ये वाइफ होती है जॉन ऑफ गॉन्ट की, तो उसकी डेथ पे ये लमेंस था, जोफ्री चौसर ने उसकी डेथ पे लिखा था ये वर्क, दैट इज इलेजी। ये एक इलेजी होती है ड्रीम एलिगरी, और ये एक इलेजी है, ये भी ध्यान में रखना, बिकॉज इट इज रिटन ऑन द डेथ ऑफ डचेस ऑफ लैंकास्टर, और डचेस ऑफ लैंकास्टर है शी इज द वाइफ ऑफ जॉन ऑफ गॉन्ट। सो इसमें जो मेन स्टोरी होती है वो ये होती है, इट इज ऑल्सो ड्रीम एलिगरी एंड द narrator, the poet is he could not sleep properly, so at the time of sleeping, okay, at the night he is reading a book collection of the stories. So यहाँ जो स्टोरी पढ़ रहा होता है सोने से पहले that is the सेक्स एंड एल्सियन स्टोरी है, वो सेक्स एंड एल्सियन। सो जो पोइट है दैट इज रीडिंग द स्टोरी द सेक्स एंड एल्सियन, ओके, इट इज द स्टोरी दैट द सेक्स हु इज द बोथ आर हस्बैंड वाइफ, ओके, जो देन द सेक्स हु गोज टू द सम एक्सपेडिशंस एंड ही ड्रोन इनटू द सी, वो सेक्स होता है, ये सी जो ओशियन होता है उसमें वहां डूब के इसकी डेथ हो जाती है। देन द एल्सियन हिज वाइफ होती है, ही वेट्स फॉर हर हस्बैंड एंड ही लिमेंट्स ऑफ हिज एब्सेंस, देन ही प्रेज टू द गॉडेस जूनो, वो गॉडेस जूनो है उससे प्रेज करती है कि प्लीज गिव मी ए ड्रीम विजन एंड प्लीज गिव मी ए ड्रीम विजन, तो वो प्रे करती है कि मुझे कुछ ऐसा ड्रीम विजन भेजे, ओके। देन गॉडेस जूनो क्या करती है, ही सेंड्स हिज मैसेंजर टू पिक अप द बॉडी ऑफ हर हस्बैंड सेक्स टू द एल्सियन, तो लास्ट में जो सेक्स है उसका फ्यूनरल दिखाया जाता है इसमें। तो ज्यादा डीप में आपको पढ़ने की जरूरत, सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है जब पोइट है उसकी जो ड्रीम एलिगरी होती है तो वो ड्रीम्स में जो बुक्स पढ़ रहा होता है, जो स्टोरी पढ़ रहा होता है, उसका नाम ये होता है सेक्स एंड एल्सियन, ओके, एंड इट इज ऑल्सो ए ड्रीम एलिगरी। सो दैट इज ऑल। इसने अपने फ्रेंच पीरियड में सिर्फ ये 2 ही वर्क लिखे थे जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है।
तो आपको ये ध्यान में रखना है क्योंकि ये कई बार पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पूछा गया था रोमन दे ला रोज का, तो आपको ये ध्यान में रखना है रिमेन्स ऑफ द रोज। एंड सेकंड जो बुक ऑफ डचेज है ये किस पे लिखी गई थी, तो दैट इज रिटन ऑन द डेथ ऑफ द डिसीज ऑफ लैंकास्टर जो जॉन ऑफ गाउंट। ओके, सो दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्लास में हम इसका जो इटालियन पीरियड है वो थोड़ा लेंथी है, उसमें इसके कई मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क आते हैं, तो उसको डिस्कस करेंगे।